ورتل القرآن ترتیلا۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد شمشاد جامعی۔ میرے یوٹیوب چینل صوت القرآن نیٹ ورک میں آپ سبھی حضرات کا خیر مقدم ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے حروف مدہ کے بحث پڑھا۔ آج کے مدہ کی ہی قسم میں سے پڑھیں گے۔ حقیقتاً حرف مد تو نہیں ہے، مگر حرف مدہ کے حکم میں آتا ہے۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش۔ یہاں لکھا ہوا ہے ان تینوں کو بھی حروف مدہ کی طرح تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف کے، جیسا کہ با کھڑا زبر با برابر با الف زبر با۔ ہم نے کہا تھا کہ الف مدہ کو منہ کھول کر کے پڑھتے ہیں، آ با تا اس طرح سے۔ تو یہاں بھی ہم پڑھیں گے منہ کھول کر کے، مگر صرف لکھنے کا فرق ہوگا، پڑھنے کا کوئی فرق نہیں ہوگا۔ جس طرح سے ہم مدہ کو کھینچ کر پڑھتے ہیں تھوڑا سا، اسی طرح سے ہم جو حکمن مدہ ہے یعنی کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کو جو ہے ہم تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے۔ جیسے حمزہ کھڑا زبر آ، با کھڑا زبر با، تا کھڑا زبر تا، سا کھڑا زبر سا، جیم کھڑا زبر جا، حا کھڑا زبر حا، خا کھڑا زبر خا، دال کھڑا زبر دا، رال کھڑا زبر را، را کھڑا زبر را، زا کھڑا زبر زا، سین کھڑا زبر سا، شین کھڑا زبر شا، صاد کھڑا زبر صا، ضاد کھڑا زبر ضا، طا کھڑا زبر طا، ظا کھڑا زبر ظا، عین کھڑا زبر عا، غین کھڑا زبر غا، فا کھڑا زبر فا، قاف کھڑا زبر قا، کاف کھڑا زبر کا، لام کھڑا زبر لا، میم کھڑا زبر ما، نون کھڑا زبر نا، واو کھڑا زبر وا، ہا کھڑا زبر ہا، حمزہ کھڑا زبر آ، یا کھڑا زبر یا کھڑا زبر یا۔ تو ہم نے دیکھا کہ جو مفرد ہے اس کو ہم نے الگ الگ پڑھا اور کھینچ کر تھوڑا سا پڑھا۔ اب مشق دیکھیں کہ اس کو جب کسی حرف کے ساتھ ملاوٹ ہوتی ہے تو ہم کیسے پڑھتے ہیں۔ حمزہ کھڑا زبر آ، دال زبر د۔ ہم نے تختی نمبر 3 میں پڑھا تھا زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اس کو جلدی پڑھنا ہے۔ تو چونکہ پہلا والا میں حکمن مدہ ہے تو اس کو ہم تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، دوسرا والا اور تیسرا والا جو ہے حرکت ہے، اسی لیے ہم دونوں کو جلدی پڑھیں گے۔ تو پڑھیں گے پھر سے۔ حمزہ کھڑا زبر آ، دال زبر د، آد میم زبر م، آدم آدم، وقف بالاسکان۔ ہم نے پہلی مرتبہ پڑھا تو آدم پڑھا، آدم، دوسری مرتبہ پڑھا تو آدم، اس طرح سے۔ تو پہلا والا کو ہم نے کھینچا اور دوسرا تیسرا کو جلدی پڑھ دیا، آ اس طرح سے، اور دوسرا کو دا، تیسرا کو ما، آدم۔ حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر م، آم، نون زبر ن، آمن آمن، رکیں گے تو آمن۔ اس وقف کا نام ہوگا وقف بالاسکان۔ میم کھڑا زبر ما، لام زیر لی، مالی، کاف زیر کی، مالکی، رکیں گے تو مالک۔ ہم کو یہ غور کرنا ہے کہ جہاں حروف مدہ ہے یا حکمن حروف مدہ ہے تو اس کو ہم تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، اور جہاں پر کسی بھی حرف پر
अगर ज़बर हो या ज़ेर हो या पेश हो तो उसको जो है हम जल्दी पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे मालिकी और रुकेंगे तो मालिक, इस तरह से। हमज़ा ज़बर अ, बा ज़बर ब, अब, वाव खड़ा ज़बर वा, अबा वा, हा पेश हूँ, अबा वाह, अबा वाह, इस तरह से। अब वाह नहीं, अबा, अबा वाह, इसमें होगा वक्फ बिल इस्कान। अब चूँकि आखिर हर्फ से पहले हुक्मन मद्दा है, तो मद्दा हो या हुक्मन मद्दा हो तो वहाँ पर जो है इस्कान करने के साथ साथ मद्दे आरिज़ भी हो जाएगा। मतलब किसी आखिर हर्फ से पहले मद्दा हो, अगर आखिर हर्फ पर ज़बर हो या ज़ेर हो या पेश हो तो हम उसको साकिन करेंगे, और उसी आखिर हर्फ से पहले अगर मद्दा हो या हुक्मन मद्दा हो तो उस पर हम वक्फ बिल इस्कान के साथ साथ मद्दे आरिज़ भी कहेंगे और करेंगे। और मद्दे आरिज़ में कसर पढ़ते हैं, तवस्सुत पढ़ते हैं, तूल पढ़ते हैं। ये जिस तरह से हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह धीरे धीरे बात की वजाहत होती जाएगी। बहरहाल मद्दे आरिज़ तो हम यहाँ पर वक्फ करेंगे तो नाम होगा इसका, रुकने का नाम होगा वक्फ बिल इस्कान मअल मद्दे आरिज़। सीन ज़बर सा, मीम खड़ा ज़बर मा, समा, वाव खड़ा ज़बर वा, समा वा, ता ज़ेर ती, समावाती, रुकेंगे तो समावात। चूँकि आखिर हर्फ से पहले आखिर हर्फ पर जो है ज़ेर है, इस वजह से इसको साकिन करेंगे तो इसका नाम वक्फ बिल इस्कान होगा। और साथ ही साथ आखिर हर्फ से पहले खड़ा ज़बर यानी कि हुक्मन मद्दा है तो यहाँ पर वक्फ बिल इस्कान के साथ साथ मद्दे आरिज़ भी हो जाएगा। इस वजह से इसका नाम होगा वक्फ बिल इस्कान मअल मद्दे आरिज़। गैन खड़ा ज़बर गा, वाव या ज़ेर वी। अब चूँकि पहला वाला हुक्मन मद्दा है और अलिफ मद्दा के हुक्म में है तो इस वजह से यहाँ पर मुंह को थोड़ा खोलेंगे और हल्का सा खींच कर पढ़ेंगे। जैसा कि हमने कहा कि अलिफ मद्दा हो या हुक्मन अलिफ मद्दा हो तो दोनों में हम मुंह को खोलकर और थोड़ा सा खींचकर पढ़ते हैं। और दूसरा वाला जो है याय मद्दा है, यानी कि या साकिन से पहले ज़ेर है तो इसको हम याय मद्दा कहते हैं। तो यहाँ भी खींच कर पढ़ेंगे। तो कैसे गावी, उसके बाद हरकत, नून ज़बर न, गावीन, रुकेंगे तो गावीन। तो आखिर पर ज़बर है तो यहाँ पर इस्कान कर देंगे, लेकिन साथ ही साथ उससे पहले हुरूफ़ मद्दा है तो इस वजह से इस रुकने का नाम होगा वक्फ बिल इस्कान मअल मद्दे आरिज़। या खड़ा ज़बर या, साद खड़ा ज़बर सा, या सा, लाम ज़ेर ली, या साली, हा पेश हु, या सालिहु, रुकेंगे तो या सालिह। अब चूँकि आखिर पर पेश है तो इसको साकिन करेंगे तो वक्फ बिल इस्कान होगा। और इससे आखिर हर्फ से पहले मद्दे हुरूफ़ मद्दा नहीं है, इस वजह से यहाँ मद्दे आरिज़ नहीं होगा। तो हम सिर्फ कहेंगे वक्फ बिल इस्कान। हमज़ा ज़ेर ई, लाम खड़ा ज़बर ला, इला, हा पेश हूँ, इलाहु, नून अलिफ ज़बर ना, इलाहुना, रुकेंगे तो उसी तरह से पढ़ेंगे। यानी कि जब आखिर में जहाँ पर हम रुकते हैं अगर वहाँ पर वो वाला हर्फ मद्दा है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि अलिफ से पहले ज़बर है, गोया कि अलिफ मद्दा है, तो जिस हर्फ पर हम रुकते हैं तो अगर वो हर्फ मद्दा होता है तो उसमें कोई तब्दीली या कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, बल्कि जिस तरह लिखा हुआ है उसी तरह पढ़ेंगे। यानी कि
मिलाने की सूरत में भी और रुकने की सूरत में भी दोनों को यकसा एक तरह से पढ़ेंगे। तो कहेंगे इलाहुना, ये वसलन हुआ, और वक्फन भी इसी तरह इलाहुना। इस तरह नहीं कहेंगे कि इलाहुन, रुकेंगे तो इलाहुन इस तरह नहीं कहेंगे, बल्कि इलाहुना ही पढ़ेंगे। तो देखिए इसका नाम होगा वक्फ इस्बात। हाँ, अब यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है हिज्र करने का तरीक़ा। हिज्र, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, दाल ज़बर दा, आद, ये ऊपर वाला जो हमने पढ़ाया वो लिखा हुआ है। आगे देखिए हा खड़ा ज़बर हा, दाल अलिफ ज़बर दा। चूँकि इसमें पहला हुक्मन अलिफ मद्दा है तो भी मुँह खोल कर पढ़ेंगे और थोड़ा खींचकर, और दाल के बाद अलिफ है तो अलिफ से पहले ज़बर है तो ये भी अलिफ मद्दा हुआ। तो गोया कि पहला वाला हुक्मन अलिफ मद्दा है और दूसरा वाला जो है अलिफ मद्दा है, यानी कि ये खुद बजाते ही खुद मद्दा है। तो दोनों में हम मुँह खोल कर पढ़ेंगे और दोनों को थोड़ा थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे, जैसे हा रा। अब इसमें चूँकि आखिर में अलिफ मद्दा है तो कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। जहाँ पर कहीं भी मद्दा होता है रुकने वाली जगह पे तो हम उस पर चेंजिंग नहीं करते हैं। हाँ, उसका नाम होता है वक्फ बिल इस्कान। रुकने का नाम होता है वक्फ बिल इस्कान, मगर इसमें कोई चेंजिंग नहीं करते। काफ ज़ेर की, ता खड़ा ज़बर ता, किता बा पेश बू, किताबू, रुकेंगे तो किताब। चूँकि आखिर में पेश है तो उसको हमने साकिन किया, और बा तो इसकी वजह से जो है इसका नाम पड़ेगा वक्फ बिल इस्कान। अब आखिर में हुरूफ कलकला बा भी है तो अब कहेंगे वक्फ बिल इस्कान मअल कलकला। और फिर देखिए इस बा यानी आखिर हर्फ से पहले हुक्मन अलिफ मद्दा यानी कि खड़ा ज़बर है, तो मद्दा आने की सूरत में यानी या हुक्मन या मद्दा आने की सूरत में जो है यहाँ पर हम रुकते हैं तो इसका नाम होगा वक्फ बिल इस्कान मअल कलकला के साथ साथ वल मद्दे आरिज़। बात अगर समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बातों की वजाहत होती जाएगी। आगे देखें रा ज़ेर री, सीन खड़ा ज़बर सा, रिसा। रा को जल्दी पढ़ा, सीन को थोड़ा खींचकर और मुंह खोलकर पढ़ा। फिर लाम को भी इसी तरह पढ़ेंगे। लाम खड़ा ज़बर ला, रिसा ला, ता ज़ेर ती, रिसालाती, रुकेंगे तो रिसालात। अब चूँकि ज़ेर की वजह से वक्फ बिल इस्कान हुआ, अब उससे पहले भी देखें कि लाम है और ये भी हुक्मन मद्दा है, तो हुक्मन मद्दा पर रुके या मद्दा पर रुके, यानी आखिर हर्फ से पहले हुक्मन मद्दा हो या हुरूफ मद्दा हो तो वहाँ पर इस्कान के साथ साथ वक्फ बिल इस्कान मअल मद्दे आरिज़ भी होता है। आगे दाल खड़ा ज़बर दा, लाम ज़ेर ली राली, काफ ज़बर का रालिक, रालिक, रुकेंगे तो रालिक, इसका नाम होगा वक्फ बिल इस्कान। ख़ास तौर से मैं गुजारिश करूँगा कि अगर आप पिछले के असबाक आपने नहीं देखा है तो सबक वाइज हमने दे दिया है, लेसन वाइज उसे आप देखने की कोशिश करें शायकी। लिहाजा आपसे गुजारिश यही है कि पिछले सबक को देख ले और समझ में नहीं आए तो ज़रूर पूछें। चलिए मिलते हैं अगले सबक में।